Welcome to Channel 1. Bengal Organ Donation Society organized 2 days of CME on grief counseling at NH Hospital with Association of NH Hospital, Mohan Foundation and Netco. Bengal Organ Donation Society President Dr. Indrajit Tiwari, Secretary Cap PM Swami and Treasurer Biren Saha. Dr. K. Mandana, Heart Surgeon and Chief Transplant Surgeon, Fortis Hospital, Dr. Suchanda Gadre, Head of Medical Superintendent, Fortis, Mr. Ashish Mukherjee, Facility Director, Fortis Hospital, attended as guest faculty. From NH Hospital, Dr. Saibal Roy Chaudhary, Academic Head. From Roto, Dr. D. Das and Dr. Arpita Roy Chaudhary. This CME, the main participants are critical care proctors, transplant coordinators, and CCU nurses. Now let's see this counseling session from our channel, and don't forget to subscribe Channel 1 Digital Media. It is their decision. Thank you so much. Once we declare the brand, first step in the place, or this would be the part of the team and daily activity. It's like if you are taking a round and if you include somebody so that this would be updated with what is going on for last 48 hours or last 3 days. There is no one answer. Like I said, there is no one family. Legally, death is declared after the second set of tests. I'm sure all of you know that 2 sets of tests are performed. However, in organ donation, we are always rushing against time. So, establishment of relationship and getting to know the family has to begin from day one. It cannot happen last minute. You cannot enter into a counseling session not knowing who these people are, where they come from, what is it that they bring to the table. You have to be there from the beginning. Being seen as a familiar, kind face who's there for the families. So there are doctors and there is this person. The doctor can introduce, tomorrow we'll show you a film, can be introduced that this is the family counselor. Actually, from doctors to any grade. So, anyone who is passionate about it, and what I feel, Pallavi, you can tell me that whether I'm right or wrong. I have instructed my coordinators always to go and people in the ICU know that who is GCS less than 3. If possible, if then it makes the medical officers also aware that this person may evolve into donor, and it's a huge job in ICU, taking care of the live ones and who can sustain and than to take care of who might lose. But can really give this pointer that yes, this is one week who you can, and they can make their face known to as if some help is required, like showing where is the blood bank, showing where is the pathology, where is the billing area, simple helps that. And the face may be little known to them. We knew that only Mama was there. Mama was the person who treated that boy who expired. That Mama was very keen to do the donation. Then our doctor called me. Then I explained what is the first apnea, second apnea, all the things I explained. Some more people came. They were not directly related. Had been done? Then I was being told in the second apnea I was being brought into a picture. So then I have explained as I have seen how server doing the apnea test. I explained the process to them, and those were Mama and the brother-in-law of the deceased and another 2 friends. So I was very happy. Like I had the core family. I was the first person. Declaring them. The core family, like the brothers, sisters. The Mama, Dr. Kaushik our doctor only explained. The Mama admitted the boy. Same conversation you brought up organ donation? No, I explained them that he is no more. Then I took them to a room, consultant room where no one's there. I made them sit. I told them whatever happened is very bad. Like I'm so sorry for this. He is your younger brothers. It's very difficult to cope up. You people sit and have speak to each other. Then I came out again. On the second time I went. Then I told them that I'm so sorry I cannot reverse the thing, but I have a question. Though it's not the right time to tell. Can I tell one thing that we have a process that if someone wants, they can give life to 12 more persons.
We can discuss this tomorrow. Why I asked that question as to when she brought up the organ donation conversation is something we'll bring up tomorrow. How declaration of death and asking for organs, these are two distinctly different conflict times depending upon the readiness of the family. हमने रखा है ग्रीफ काउंसलिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। ग्रीफ काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ग्रीफ आवर में जब आप किसी का डेट डिक्लेयर करते हो, फ्रेंड डेट डिक्लेयर करते हो, तो उसमें काफ़ी परेशानी में लोग आते हैं। उस परेशानी के बीच आप यदि किसी को ऑर्गन मांगते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि लोग नो बोल देंगे, नहीं होगा। उसके लिए आपको एक इफेक्टिव आदमी चाहिए, एक काउंसलर चाहिए जो उनको समझा सके और दूर पे करेंगे कि ये ऑर्गन डोनेशन क्यों जरूरत है। जो मर गया समझ गया, वो उसके बाकी लोगों को जान बचा सकते हैं जिसको उस ऑर्गन का नीड है। ये चीज़ समझाने के लिए एक आदमी को ट्रेनिंग का जरूरत है, जिसको हम लोग ग्रीफ काउंसलर मेडिकल काउंसलर बोलते हैं। इसके लिए हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोहन फाउंडेशन, नाटक सोसाइटी ट्राइंग टू डू सच सेमिनार। इससे कि हमें जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं, कुछ काउंसलर हम अपॉइंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, देन इट विल बी फ्रूटफुल से और ज़्यादा से ज़्यादा। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर इंद्रजीत कुमार सिन्हा, मैं हेड क्रिस्टो क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, चेयरमैन बंगाल। जब भी कोई फैमिली कोई मेंबर ब्रेन डेथ होता है तो उस समय उसके ऑर्गन हम लोग ले लेते हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है, लेकिन वो कार्डियकली वो पेशेंट जिंदा रहता है, उसका हार्ट काम करता है। ऐसी स्थिति में उनका ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और इसलिए उनके ऑर्गन ठीक होते हैं। और ये जो विंडो पीरियड हमको मिलता है टिल द टाइम ब्रेन डेथ से जब तक कार्डियक डेथ होती है, उस पीरियड में हम लोगों का एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट होता है कि हम लोग किसी तरीके से उनके वर्किंग ऑर्गन्स को रिमूव करके किसी दूसरे नीडी पेशेंट को ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन ये बड़ा ही टफ कार्य है, क्योंकि फैमिली के अंदर जो डेथ हुई है उस समय उनसे ऑर्गन मांगना बहुत ही खराब कार्य है। कितना भी ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग फॉर ऑर्गन, लेकिन इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं होता है। तो उस ग्रीफ काउंसलिंग का जो पीरियड होता है, हम लोगों की कोशिश होती है कि फैमिली को किस तरीके से हम लोग काउंसिल करें और उनके अंदर में जो नो की फीलिंग है उसको यस में कन्वर्ट करके हम उनको एक अच्छे कार्य की तरफ, एक सोशली रिलीवेंट कॉज की तरफ प्रेरित करें, क्योंकि एक ब्रेन डेथ पेशेंट से 8 लोगों का जीवन बच सकता है। और ये बहुत ही बड़ा कार्य है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे भारत में 5 लाख लोगों को ऑर्गन्स की ज़रूरत है। कुछ को किडनीज की ज़रूरत है, कुछ को लिवर्स की ज़रूरत है, कुछ को पैनक्रियास की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग लंग्स की प्रॉब्लम होंगी, स्पेशली आफ्टर वी हैड कोविड। सो ये जो ऑर्गन्स हैं ये कहीं ना फैक्ट्री में बनते हैं, ना हार्वेस्ट किए जा सकते हैं, ये खाली एक ब्रेन डेथ पेशेंट से हम लोग ले सकते हैं। तो ये कलकत्ता के अंदर और ईस्टर्न रीजन में इस तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं था, तो हम लोगों ने देखा कि हमें यहाँ के हॉस्पिटल्स के आईसीयू स्टाफ को और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को इसमें प्रेरित करके जिससे वो अपना कार्य बेटर कर सकें। बाकी अल्टीमेटली तो हॉस्पिटल्स का और मेडिकल फ्रेटर्निटी को करना है। एज एनजीओ वी हैव ट्राइड टू डू आवर बेस्ट सो दैट सोशली वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर ए वेरी वेरी बिग कॉज। सर आपका नाम? मेरा नाम कमोडोर वीएम स्वामी है और मैं कैलकाटा पोर्ट से रिटायर किया था, लेकिन ऑर्गन डोनेशन मेरा हमेशा से एक पैशन रहा है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कभी भी कोई वर्किंग ऑर्गन्स को आप ना जलाइए ना उसे दफनाइए, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और अगर आप वो ऑर्गन किसी को डोनेट कर सकते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम अपने जीवन में नहीं कर सकते। थैंक यू। सत्य है, अंगदान महादान है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुआ है और ज़्यादा होना ज़रूरी है। और ये जो CME हो रहा है आज, ये उसी पथ पे जाने का शिविर है ये, जहाँ पे ग्रीफ काउंसलिंग जो इनिशियल स्टेज में अगर दिस इज डोनेशन, दिस इज ब्रेन डेथ डिक्लेयर होता है, उस समय से लेके ट्रांसप्लांट कॉलेज का क्या काम होगा क्या नहीं होगा, ये आज ये 2 दिन के CME में सिखाया गया। तो मुझे खुशी है कि कलकत्ता और बंगाल
डिसीज डोनेशन के मार्ग पे चल पड़ा है। अभी तक हमारे 7 डिसीज डोनेशन हो चुके हैं इस साल, और हमारा रोटो और सोटो जो है बड़ा प्रोएक्टिव है, और बंगाल ऑर्गन डोनेशन इस पद पे चला है। कितना अंगदान हो, और हम सब एक ही लाइफ में मरने के बाद अमर रहना है, तो अंगदान करना होगा। सर, जैसा कि मैम ने कहा, सोसाइटिकल केसेस में भी बहुत सारे लोग को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा, बोला जा रहा है। सर, इस क्या कहना चाहते हैं, सुसाइड करने के बाद भी लोग अंगदान कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल लीगल इश्यूज हैं तो उसको ओवरकम किया जा सकता है। अभी लॉज काफ़ी इजी हो गए हैं, पर एक जागरूक एक्टिविस्ट उस सोसाइटी डिजीज़ का भी किया जा सकता है। बस मन होना चाहिए और सारी अथॉरिटीज़ को एक्टिवली काम करे, तो सोसाइटी लोगों का भी अंगदान हो सकता है। सर, आपका नाम? मैं हूँ वीरेश शाह, महासचिव बंगाल ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी। थैंक यू सर। नमस्कार। कहना चाहते हैं? Very important question, I suppose, because if you see the donation rate in Calcutta is little less than other parts of the country. One of the reasons is we are not being able to convert the constant donation. So in that, Red Council is a very important because they are the person who convinces the patient's relative for donation. We have Mohan Foundation, they are one of the pioneers in donation in India. So I think the attendees and the transplant coordinators and all will immensely benefited with this 2 days program. This is very needed. This is an hour that we come forward and donate more and more. But for this awareness and the awareness amongst us and awareness amongst the transplant coordinators, this kind of quick counseling sessions is very important. Sir, your name? Dr. Devanka Sharma. I'm the HRD Urology and the Joint Director of Roto Institute. थैंक यू। बेसिकली हमें इसके बारे में कॉन्वर्सेशन शुरू करें। अगर आप किसी भी सिटी में घूम रहे हो, आपको बैनर दिखाई पड़ेगा मलेरिया पे, पोलियो पे, कुछ और पे, कितने आपको होर्डिंग दिखाई पड़ेंगे ऑर्गन डोनेशन पे। गवर्नमेंट की तरफ से, NGOs की तरफ से, हमें बस लोगों को इसके बारे में सोचना शुरू कराना है। क्या है ये? मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका कि पॉजिटिव स्टोरीज आप मीडिया पे लेके आओ। उसका बेच दिया, उसका खरीद लिया, उस पर फोकस नहीं करके कैसे किसी फैमिली ने अपने डेथ में भी ऑर्गन डोनेशन करके ज़िंदगियां बचाई, उस तरह की पॉजिटिव स्टोरी अगर मीडिया सामने लाएगा तो लोगों को समझ में आएगा। किसी को ऑर्गन मिला हो, कैसे उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई ऑर्गन मिलने के बाद, पॉजिटिव स्टोरीज हमें करवानी है और हमें डिस्कशन शुरू कराना है इसके बारे में। प्लेजिंग पे हमारा फोकस नहीं है। प्लेज करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी है कि फैमिलीज इसके बारे में बैठ के डिस्कस करें अच्छे टाइम, अच्छे समय पे, लंच टेबल पे बैठे हैं, अच्छा हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में क्या सोचते हैं, माई डोनेशन के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जब डेथ के टाइम पे पूछा जाता है उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है फैमिलीज़ के लिए। अभी डेथ डिक्लेयर हुई है और आपको हिसाब से ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहा है। अगर आपने इसके बारे में पहले सुना ना हो, सोचा ना हो, समझा ना हो, तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। तो एक तो डिस्कशन ऑन ऑर्गन डोनेशन, फैमिली डिस्कशन ऑन ऑर्गन डोनेशन एंड पॉजिटिव मैसेजिंग बाय द गवर्नमेंट, बाय द मीडिया, बाय NGOs, बाय हॉस्पिटल्स एंड बाय डॉक्टर्स। मैम, आपका नाम? मेरा नाम पल्लवी कुमार है, मैं मोहन फाउंडेशन दिल्ली ब्रांच से। অর্গান ডোনেশন নিয়ে যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি, করলে অঙ্গদান অন্যরা পাবে প্রাণ, তাদের কাছে আপনি হবেন মহান। একজন মানুষ দিলে পরে অনেক মানুষ বাঁচতে পারে, অচল দেহের সচল অঙ্গ হেঁটে চলে বেড়াতে পারে, চোখটা পেলে দেখবে আলো, কিডনি কাজ করবে ভালো, নতুন লিভার হজম করায়, হৃৎপিণ্ডের দম বেড়ে যায়। রেন্ডেথের পরে যেন জাগুক বাঁচার অধিকার, বিশ্বজুড়ে উঁচু আওয়াজ অঙ্গদানের অধিকার। থ্যাংক ইউ।